Okay, let's start unit number 5. Today we are going to start unit number 5, finance and accounting. Let's start the first topic, importance of business finance. Finance किसे कहते हैं? पैसा, मनी. फाइनेंस किसी को बुरा नहीं लगता, हर बंदा चाहता है फाइनेंस होना चाहिए. So what is business finance? तो business finance को कैसे define करेंगे? It is the money that business owners need to start or expand the business. Business का जो finance, business की जो money, that is business finance. Finance is foundation of any business. मतलब finance के बगैर आप business नहीं चला सकते. Capital is like very broad term. Capital में machinery भी आ जाती है, equipment भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें आती हैं. We say finance में सिर्फ money आती है. Importance or benefits of business finance. क्या फायदा होता है if the business would be having enough finance? You can say it may expand, it may cover its day-to-day expenses better, and next you can say it can survive in like financial crisis. कि अगर किसी वजह से like COVID आया, COVID की वजह से business के पास पैसे नहीं है, तो you can survive. So at least you should know 2 or 3 reasons for the importance of business finance. After this, 2 other definition. Startup capital. Startup capital amount that is required to set up a new business. I already told you never ever use the same word in definition. जैसे आपसे पूछे startup capital, the capital that is required to start up, वो acceptable नहीं होता. आपको words को थोड़ा change करना पड़ेगा. Capital को आप amount से replace करें. Amount that is required, needed to set up a new business. And that could be used for the buying of building, machinery, vehicles. इसको हम seed money भी कहते हैं. That is the seed money of the business, startup capital. Seed, मतलब business को चलाने के लिए startup capital is very, very important. After this, source of startup capital. Startup capital कहाँ से आता है business के पास? There could be many sources. Bank loan, personal, friends, family. एक और इसमें लिखा हुआ था, I deleted it. Angel investors. ठीक है. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे बड़े इंस्पायर्ड होते हैं, वो कहते हैं इसको इन्वेस्टमेंट दे दें, ये बहुत अच्छा कर देगा. तो that could be like this. After this, distinctions between short-term and long-term need for finance. Short-term and long-term need means, long-term needs mean when you need a finance for the long time period, mean you are thinking to pay back after a long time period, maybe after 5 years. So long-term need could be, क्या हो सकती है long-term need? Maybe you want to buy large equipment. Maybe you want to spend high amount on research and development. And what could be short-term need? Short-term needs might be buying of supplies. Short-term need might be paying wages. For the time being, आपको बड़ा limited time के लिए पैसा चाहिए. That would be like short-term and long-term. After this, another very important terms, difference between cash and profit. Cash क्या होता है? Cash is the physical money that business owed or own. Like इसको निकाला जाता है cash inflow and outflow से, कि आपके पास कितना cash in है और कितना cash out हो गया. So then you calculate cash flow. And profit is the difference between revenue minus expenses or cost. अगर आपने profit देखना है तो अपने revenue में से expenses minus करेंगे. और cash is different thing and profit is different thing. Cash is the physical money. ठीक है. अगर मैं जैसे for example if I want to see my profit, मेरा profit कितना है, तो I will see how much fees I have received, how much expenses I am bearing. So you get the profit. But मैं कहता हूँ अगर suppose 5 students fees नहीं देते, तो how will I calculate profit? So definitely आपका cash और profit will not be same. So cash और profit कभी same नहीं होता. You can't say कि अगर एक business 50,000 profit show कर रहा है तो इसके पास 50,000 cash भी होगा. Maybe उसने credit पे चीजें बेच के वो profit earn किया हो. So cash and profit is not same. Yes. सर मुझे बताएं प्रॉफिट और एडेड वैल्यू एक ही चीज होती है? Profit and added value में difference है. ठीक है.
प्रॉफिट निकालने के लिए एडेड वैल्यू में हम अदर एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गेट प्रॉफिट। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि आप वुड बाय करते हैं, $10 की वुड है, आप उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लेके जाते हैं और उसका फर्नीचर बना के सेल करते हैं, और फर्नीचर आप सेल करते हैं से $25। अब आपने $10 की वुड को $25 अर्न करके बेचा, तो इट मींस के व्हाट वाज वैल्यू एडेड? $15। वैल्यू एडेड की क्या डेफिनेशन है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स और फिनिश प्रोडक्ट। तो $15 इज योर वैल्यू एडेड, बट इट इज नॉट प्रॉफिट, क्योंकि आपने उस फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अदर कंपोनेंट भी डाले होंगे, सिर्फ मटेरियल नहीं लगा, और इलेक्ट्रिसिटी है। सर एडेड वैल्यू कॉस्ट के अलावा भी हो सकती है ना? एडिड वैल्यू में कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट मीन, अब जैसे मैंने आपको बताया वुड बनाने के लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हुई होगी, आपने लेबर भी लगाई होगी, तो उसका जो डिफरेंस होगा ना, दैट वुड बी वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड क्या होगा? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू वैल्यू एडेड माइनस अदर कॉस्ट, नॉट द रॉ मटेरियल कॉस्ट, अदर कॉस्ट, देन यू गेट द प्रॉफिट। तो ये आपको बड़ा क्लियर पता होना चाहिए। आफ्टर दिस, बिजनेस फेलियर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस। अब आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है बिजनेस फेल कैसे होता है, देयर आर मेनी रीजन जो आपने स्टार्ट में पढ़ा था, बट दिस इज यूनिट नंबर 5, क्योंकि ये फाइनेंस के ऊपर है, तो इसमें स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि बिजनेस फाइनेंस से कैसे फेल होता है। सो फाइनेंस मीन व्हेन बिजनेस हैव नो मनी, व्हेन बिजनेस विल हैव नो मनी, तो उसे कहते हैं बैंकरप्ट बिजनेस। व्हाट इज बैंकरप्ट बिजनेस? when you have no money and some amount is due on you, इसे कहते हैं बैंकरप्ट हो जाना। हाँ, जैसे आप देखो ना, रिसेंटली आपने सुना कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा था, दैट मींस वी आर सपोज्ड टू पे द इंस्टॉलमेंट टू द यूएस बट वी हैव नो डॉलर्स, तो उसे कहते हैं बैंकरप्सी। दिस सिचुएशन इज नोन बैंकरप्सी। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने जो पास पेपर पढ़ रहे थे उसमें आई थिंक यही डेफिनेशन थी, डिफाइन द टर्म बैंकरप्सी। सो बैंकरप्सी इज a situation. How will you define this word? Bankruptcy is a situation when a business becomes bankrupt, means when business is supposed to pay some amount or some amount is due on the business, but the business has no money to pay that. So this situation is known bankruptcy, and that business is known bankrupt business. क्या? Bankruptcy and bankrupt business, what does it mean? मैंने आपको बताया इसके बारे में, ये एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए आपको बड़ा क्लियर पता होना चाहिए। बैंकरप्ट बिजनेस वो होता है जिसमें आपने किसी को अमाउंट पे करनी हो एंड यू हैव नो मनी, जिसमें लोन तो आप लेते होते हो ना? लोन आपने लेना है और कोई इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू है, ठीक है, तो इट मींस कि यू आर सपोज्ड टू पे बैक द लोन इंस्टॉलमेंट एंड यू हैव नो मनी, दैट मीन यू आर बैंकरप्ट बिजनेस। सेम लाइक सैलरीज, आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, पूरा आपने मंथ उनसे काम लिया, बट यू हैव नो मनी टू पे द सैलरीज, दैट मीन यू आर बैंकरप्ट बिजनेस। सेम रेंट, आपने अपने रेंट देना है हर महीने के फर्स्ट को और आपके पास नो मनी फॉर द पेइंग ऑफ रेंट, दैट मीन यू आर बैंकरप्ट बिजनेस। तो बैंकरप्ट बिजनेस किसी वजह से भी एनी एक्सपेंस दैट यू आर सपोज्ड टू पे बट यू हैव नो, कुछ भी लायबिलिटी, मतलब इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज बैंकरप्सी, व्हाट इज बैंकरप्ट। Bankrupt mean when you are supposed to pay any amount when a business, but business has no money, that means it's bankrupt business. When business will declare bankrupt, फिर उसके बाद क्या होता है? Then liquidation होती है, that is given in the second paragraph. Liquidation. Liquidation means when business will become bankrupt, then business will liquidate. Liquidate mean its all assets will be sold and the people will get the money who are supposed to get the claims. मतलब बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज, बिजनेस के सारे जो आपके एक्सपेंस है वो पे बैक होते हैं, कहाँ से? फ्रॉम द सेलिंग ऑफ एसेट्स। क्योंकि जब एक बिजनेस बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता है तो व्हाट वुड हैपन कि फिर उसके सारे एसेट्स सेल हो जाते हैं। अब जैसे आपने देखा, मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की एग्जांपल दी, अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता, व्हाट हैपन, फिर उसमें ये होता है कि फिर आपको अपने नेशनल एसेट सेल करने पड़ते हैं। Maybe you have to sell your PIA, maybe you have to sell your atomic plant, कुछ भी आप उसको बेच के आप पैसे, कुछ भी हो सकता है।
यस, लैंड तो वो टेरिटरी एक बनी होती है हर कंट्री की, बट वो आपसे एसेट्स होते हैं ना वो लेते हैं। लैंड को क्या करेंगे? गोरों को आप 50 कनाल लैंड दे दो, वो क्या करेंगे? उन्होंने इधर आके क्या करना है? उनको ऐसी चीज चाहिए जिससे पैसा बने। मतलब जैसे फैक्ट्री है, गवर्नमेंट की फैक्ट्री, पाकिस्तान स्टील मिल, वो ले लेंगे। वो कहेंगे हम स्टील मिल चलाएंगे, हम उससे अर्न करेंगे। वो आपकी मोटरवे ले लेंगे, कहेंगे लाहौर इस्लामाबाद वाली ये मोटरवे ये हमें दे दो, जो भी डेली का इसमें पैसे आएंगे वो हम लेंगे। तो वो नेशनल एसेट्स पे अटैक करते हैं। आफ्टर दिस, वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? यस, जो वर्क कर रहा है, कैपिटल दैट इज वर्किंग इन द बिजनेस। इसमें आपने दो डेफिनेशंस पहले याद करनी है, दैट इज गिवन एट द बॉटम, दैट इज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। पहले आपने इन दोनों को समझना है, व्हाट इज करंट एसेट्स, व्हाट इज करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स क्या होते हैं? कैश और एनी एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब वो चीजें जिनको फॉरेन बिजनेस बेच के पैसे कन्वर्ट कर ले और पैसा आपका करंट एसेट होते हैं। एग्जांपल्स कुड बी इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, all are current assets. And what is current liabilities? वो अमाउंट जो पेबल होती है विद इन अ ईयर। इट कुड बी ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल को निकाला जाता है करंट एसेट्स अमाउंट माइनस करंट लायबिलिटीज अमाउंट। सो इफ यू सी, करंट एसेट्स कितने हैं? 50,000 एंड करंट लायबिलिटीज कितनी है? 30,000। वर्किंग कैपिटल वुड बी 20,000। तो ये तो है इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर ये पेपर 2 में आती है कैलकुलेशन, पेपर 1 में नहीं आएगी। पेपर 1 में वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा, डिफाइन वर्किंग कैपिटल। आप ये फार्मूला भी लगाएंगे, यू विल गेट 2 मार्क्स। नाउ वर्किंग कैपिटल होता क्या है? बेसिकली वर्किंग कैपिटल इज द लाइक पॉकेट मनी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के पास जो डेली रूटीन के खर्चे पे करने के लिए जो पॉकेट मनी है, पैसा है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। मतलब जो आपने डेली रूटीन की कॉस्ट क्या हो सकती है, लाइक आपने कोई सप्लाईज खरीदनी है, अपने एम्प्लॉयज को वेजेस देनी है, तो यू हैव द वर्किंग कैपिटल। लाइक जैसे करंट एसेट्स है, करंट एसेट इज इनफैक्ट योर कैश, और करंट लायबिलिटीज वो अमाउंट है जो आपने पे करनी है विद इन अ ईयर। अगर आप उस करंट एसेट में से वो लायबिलिटीज भी निकाल दो, जो रिमेनिंग अमाउंट होती है दैट इज नेम्ड वर्किंग कैपिटल। तो वो अमाउंट आप अपने वेजेस के लिए रखोगे, वो अमाउंट आप अपने सप्लाईज के लिए दोगे, तो दैट इज नेम्ड वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट हम बेचो, जिससे लायबिलिटी पूरी करो, जो पीछे बचता है हाँ, वो वर्किंग कैपिटल है। डेली कॉस्ट। हाँ यस, वो अदर कॉस्ट पे लगता है। तो वर्किंग कैपिटल वुड बी गुड। अगर आपका वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, नेगेटिव मींस इफ योर करंट लायबिलिटीज आर मोर देन फ्रॉम करंट एसेट्स, इससे क्या होगा? बैंकरप्ट होगा। यस, क्योंकि आपके पास लायबिलिटीज पे करने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की क्या इंपॉर्टेंस है फॉर द बिजनेस? अभी आपने देखा कि वर्किंग कैपिटल सेव द बिजनेस फ्रॉम द लिक्विडेशन सिचुएशन। सी द लास्ट पॉइंट, कैन सेव इटसेल्फ फ्रॉम लिक्विडेशन सिचुएशन। मतलब आप बैंकरप्ट नहीं होते, आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं होगी इफ यू हैव गुड वर्किंग कैपिटल। अदर बेनिफिट्स कुड बी, वर्किंग कैपिटल से आप यू कैन पे वेजेस एंड सैलरीज टू वर्कर्स, you can buy supplies from the suppliers, you can get trade discount, cash discount from suppliers. So there are many benefits of working capital. इसमें रिश्वत भी आए, दिल्ली से कौन सा? रिश्वत। रिश्वत? What do you mean by this? मतलब अगर आपके कुछ पुलिस वाले छापा मार लेते हैं, नहीं यार, ये बिजनेस की बड़ी कॉमन सी चीज है वर्किंग कैपिटल। रिश्वत कहाँ से? पाकिस्तान में को मारते हैं छापे बिजनेस। नहीं, ऐसी कोई गेम नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दो चीजें हैं इसमें। इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इससे पहले आपने पढ़ा था इन्वेंट्री मैनेजमेंट। व्हाट वाज दैट? मैनेज करना। हाँ गुड, इन्वेंट्री को मैनेज करना मींस टू कीप इन्वेंट्री एट एप्रोप्रिएट लेवल। इन्वेंट्री ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। सेम लाइक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मीन कि वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा भी नहीं हो और बहुत लेस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर लो वर्किंग कैपिटल है या हाई वर्किंग कैपिटल है तो इसका क्या डिसएडवांटेज होता है? कम टू द फर्स्ट, लो वर्किंग कैपिटल। लो वर्किंग कैपिटल तो बहुत सिंपल है।
If you have low working capital, लिक्विडेशन के ज्यादा लिक्विडेशन के बहुत हाई चांसेस डेली डेब्ट्स आप नहीं पे कर सकोगे, आप डेली रूटीन के अपने वही खर्चे उल्टा नहीं होगा भर उस सकते. चीज का। You are unable to pay your due bills. इसकी वजह से there are high chances कि आप अपनी कंपनी को क्लोज कर दें, लिक्विडेट कर Wages दें. and workers But why high working capital is not good for the business? वो ज्यादा ही हाई इन्वेंटरी होगी भाई. अगर आपका बहुत हाई वर्किंग कैपिटल है, इट मींस कि योर इन्वेस्टमेंट इज टाइड अप इन करंट एसेट्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री. आप उस पैसे को कहीं पे बहुत अच्छा यूटिलाइज करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने इन्वेंट्री खरीदी हुई है, आईफोन रखे हुए हैं, आप 5 लाख का अपनी शॉप एक आईफोन ले आए इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री. आप कहते हो ये मैंने कैश पे बेचना है. 5 लाख के 10 फोन ले आते हैं, 50 लाख यू हैव इन्वेस्टेड इनटू योर बिजनेस. अब जब तक वो फोन सेल नहीं होंगे, 50 लाख आपका स्टक पड़ा हुआ. इसका ये होगा करंट लायबिलिटी जब कम और एसेट्स ज्यादा हो. हाँ यस, मतलब आप अपना पैसा फंसा लेते हो ना बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री, तो वो बहुत डेंजरस होता है. अभी जैसे आज सुबह मैं एक स्टूडेंट के साथ था, वो बता रहे थे कि मैंने सर ये 13 करोड़ का प्लाजा बनाया, 3 साल हो गए. ठीक है, अभी ये इनकम्प्लीट है, बट हमारा 13 करोड़ तो स्टक है. What does it mean? आप ये 13 करोड़ अगर 3 साल में किसी और जगह इन्वेस्ट करते तो यू कैन अर्न मच मोर देन दिस. ठीक है, तो आप जब वर्किंग कैपिटल में इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री अपना पैसा फंसा लेते हो, व्हेन यू बाय टू मच हाई स्टॉक, है तो इन्वेंट्री आपका वर्किंग कैपिटल, बट इन्वेंट्री में आपका पैसा टाइड अप हो जाता है. दैट इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस. इसलिए कहते हैं वर्किंग कैपिटल को इफेक्टिवली मैनेज करें. एंड यू नो द आइडियल सिचुएशन इज 2-1. 2-1 मीन जितनी करंट लायबिलिटीज हो, करंट एसेट उसके डबल होने चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. मींस अगर आपकी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज 1 लाख है, तो हाउ मच इज करंट एसेट? 2 लाख, उससे डबल. वो आपने कहा तो व्हाट डज इट मीन? 2:1. ठीक है, अगर मैं आपको कहूं आपकी करंट एसेट्स है 70,000, करंट लायबिलिटी 70,000, सो हाउ मच वुड 140,000. ठीक है, so your current asset should be double than current liabilities. This is ideal situation. But अगर आप कहते हो मेरे पास 5 लाख के करंट एसेट्स हैं और मेरी 10,000 की लायबिलिटीज हैं, बज़ाहिर तो आपका बहुत अच्छा नजर आ रहा है, यू हैव वेरी गुड कैश पोजीशन, लेकिन बिजनेसमैन कहते हैं दिस इज नॉट गुड. यस, 490 यू हैव स्टक इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल. इसको नहीं स्टक होना चाहिए. ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्डिंग वाला है, इसमें अपनी तरफ से नहीं लिख सकते. लेकिन अगर आपके पास एसेट ज्यादा हो और आप लोन वापस लेने में मतलब कुछ करना, कुछ एक्सपैंड करना, वो डिफरेंट तो आप पूरा कर सिचुएशन सकते हो. है, डिफरेंट सिचुएशन है. वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव वो आप पढ़ोगे आगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस. ओके, कम टू द शॉर्ट क्वेश्चंस. डिफाइन द टर्म वर्किंग कैपिटल. इसमें आप सिंपली 2 मार्क्स की डेफिनेशन भी दे देंगे तो यू विल गेट 2 मार्क्स. इफ यू सी इट्स मार्किंग स्कीम, इसी के नीचे देखिए आपकी मार्किंग स्कीम नजर आ रही होगी. आंसर शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्मूला लिख दो. फार्मूला जैसे आप देखो, इन अकाउंटिंग टर्म्स वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के 2 मार्क्स लिखे. सो इफ यू राइट डाउन द फार्मूला यू विल गेट 2 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन one reason why effective management of working capital is important for all businesses. एक रीजन बताएं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है. आप इसको लो वर्किंग कैपिटल या हाई वर्किंग कैपिटल किसी भी सिचुएशन से लिख सकते हैं. आप कहोगे इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल इज इंपॉर्टेंट as low working capital can liquidate the business. If the business has low amount to pay on due bills, that means business can becomes bankrupt. So because of bankruptcy, business may liquidate, its asset would be sold. तो उसको इतना वर्किंग कैपिटल मस्ट होना चाहिए कि अपने ड्यू बिल्स को पे कर ले. और इफ यू वांट टू राइट एट द हाई वर्किंग कैपिटल साइड, वो भी लिख सकते हैं. उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि इसने अपना कैपिटल टाइड अप किया हुआ है. डिफाइन द टर्म स्टार्टअप कैपिटल. ये भी सिंपल, कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप, बट यू विल नॉट यूज द सेम वर्ड्स. An amount that is required to set up a new business. ठीक है, explain one source of startup capital. कोई फैमिली फ्रेंड्स एंड फैमिली कुछ भी. अच्छा जी, नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं. छोटा सा टॉपिक, एक ही पेज का है. टॉपिक नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक्सपेंडिचर्स कहते हैं अमाउंट, खर्चा करने का। व्हेन यू पे अमाउंट, दैट इज एक्सपेंडिचर। बिजनेस में दो टाइप्स के एक्सपेंडिचर फॉल करते हैं, वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अदर इज रेवेन्यू। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मूव ऑन टू द फर्स्ट वन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हेन बिजनेस स्पेंड अमाउंट ऑन बाइंग फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट लाइक मशीनरी, व्हीकल्स, बिल्डिंग, मतलब जब कोई बिजनेस बड़ी चीज बाय करता है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? व्हेन ए बिजनेस स्पेंड ऑन डेली रूटीन एक्सपेंसेस, rent, wages, that is revenue expenditure. Business must differentiate these two expenditure in the books of accounts. मतलब वो जो अपने अकाउंट्स बनाते हैं उसमें मस्त दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने देखा है अकाउंटेंट जो होते हैं बिजनेस में, वो एक्सपेंसेस का अलग रिकॉर्ड रख रहे होते हैं कि these are our expenses। अपने जो एसेट उन्होंने खरीदे हुए उनका सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं। Why? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेनिफिट्स टू डिफरेंशिएट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों बिजनेस उनको डिफरेंशिएट करता है? इसका जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे आसान है। टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया है, उसके लिए उसको दोनों को डिफरेंशिएट रखना है। और प्रॉफिट किससे निकलेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंसेस। आपको रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो यू विल गेट द प्रॉफिट, बिकॉज में लिखा भी हुआ है एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस शोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको इन दोनों को सेपरेट मस्ट करना है। उसके अलावा और क्या रीजन हो सकती है? इफ यू सी द फर्स्ट पॉइंट, तो चेक द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। नेट वर्थ आपने देखा है, जैसे कहते हैं एप्पल की नेट वर्थ कितनी है? $14 बिलियन, $90 बिलियन। व्हाट डज इट मीन? नेट वर्थ कहते हैं उसके जो एक्चुअल एसेट्स हैं वो कितनी वैल्यू की हैं, उसके बाद जो बिल्डिंग है, उसके बाद जो मशीनरी है, उसके बाद जितने भी बड़े बड़े आइटम्स हैं उनकी क्या वर्थ है, इससे उस बिजनेस का एस्टिमेशन लगाया जाता है। तो इफ यू हैव डिफरेंशिएटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर देन यू कैन सी द नेट वर्थ। सेकंड पॉइंट ये भी इजी है, टू कैलकुलेट द फेयर प्रॉफिट, ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट, मतलब बिजनेस की एक फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आपने देखनी है कि एग्जैक्टली उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस। सेम टू सी ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, दो वर्ड्स होती हैं, एक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है कि उसने पैसे के ऊपर कैसी परफॉर्मेंस शो की है। जैसे आपने 2 से 4 कमाया है, 4 से 8 कमाया नहीं कमाया, ये आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो होती है प्रॉफिट से। एंड अदर वर्ड इज फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपकी फाइनेंशियली पोजीशन क्या है, आपके पास कितने एसेट पड़े, तो ये आप कैपिटल एक्सपेंडिचर से देखते हो। तो देयर आर मेनी पॉइंट्स यू कैन डिफरेंशिएट, बट ये बहुत आप कह लो मतलब टेक्निकल सा नॉलेज है, मतलब आपको इसके अंदर एज इट इज बात लिखनी है, इसमें अपनी तरफ से नहीं लिख सकती, इसमें स्टोरियां नहीं लिखी जा सकती। इसलिए आज तक इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, बहुत रेयर आते हैं, बहुत रेयर, और आते भी हैं तो लोग चॉइस पे छोड़ देते हैं। मतलब अगर आपसे पूछे ना एनालाइज 2 रीजन वाई, उन रीजन को एनालाइज करना बहुत मुश्किल होगा, उसका क्या BLD बनाएंगे और क्या उसकी एप्लीकेशन लिखेंगे, मतलब लिखा जा सकता है बट इट इज हार्ड। अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट्स कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू। बस इन टॉपिक्स को आप शॉर्ट आंसर तक रखें, मतलब अगर इस पे डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यू आर एबल टू डिफाइन। और इस पे अगर वो एक रीजन पूछ ले 3 मार्क्स में, एक्सप्लेन 1 रीजन व्हाई बिजनेस शुड डिफरेंशिएट दीज 2 एक्सपेंडिचर्स, आप लिखो जी टू कैलकुलेट प्रॉफिट, टू सी द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ दिस। चलिए अमल, इज इट क्लियर नाउ?